ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਲੈਣ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬੱਦਲਬਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਦਲ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਥੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इस जेल ਨੂੰ बनाया गया सी। राजस्थान में चित्तौड़ महाराणा प्रताप वो 12 किलोमीटर के एरिया में, ये 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में। कितना? राजा सूरज सेन पहले राजा थे, इन्होंने इस किले की शुरुआत की थी 525 में। लेकिन यहाँ सबसे बाद में राजा सिंधिया आए। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस हुए राजा मानसिंह तोमर बंसी। इन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाया और सामने वाला खूबसूरत महल बनवाया। मानसिंह नाम के राजा तो हुए ही, राजा मानसिंह जयपुर वाले थे, वो अलग ही अलग। तो इनकी 9 रानियाँ थी राजा में। 8 रानियाँ राजाओं की लड़की थी जो मानसी महल में रहती थी। उन रानियों की पूजा करने के लिए शिव जी का मंदिर बनवाया था। इसको 52 थंब कहते हैं, लेकिन 52 थंब नहीं है, इसमें थंब है 82। और 82 थंबों की मदद लेकर के हॉल बनाया। जब जहांगीर का टाइम आया था तो मंदिर को हटा करके इसको जेल बना दिया। जब ये जगह जेल बनाई गई, 30 खंबे बंद कर दे गए चारों तरफ से, यानी घेर दिया था इसको दीवार से। तो 30 खंबे बंद हो चुके थे, 52 खंबे बीच में थे। एक एक राजा को एक एक खंब से बांध के रखा, इसलिए इसको 52 खंब कहा जाता है। यही वो जगह है जहाँ पर 6 बादशाह हरगोबिंद साहब 2 साल 3 महीने आकर के यहाँ रहे हैं। नजर कैद में किया गया था गुरु साहब को जहांगीर के द्वारा। लाया क्यों गया था, गुरु साहब ने कैसे राजाओं को छुड़ाया, हालांकि आपको सबको पता रहता है गुरु जी के बारे में, लेकिन ये जगह पे जहाँ गुरु जी ने रिहाई कराई 52 राजाओं की, उस जगह पे आकर के सुनते हैं तो एक सत्संग साथी का। ये नहीं कि मेरे को आता आपको नहीं आता, आता सबको है, सबको मालूम है गुरु जी के बारे में, लेकिन इस जगह पे सुनने का महत्व है। तो अगर 5-10 मिनट का अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको है ना 5 नहीं आप उतारो नहीं उतारो। देखिए ग्वालियर के किले पर श्रीवास्तव हुई जब आकर रहे हैं 2 साल से, यहाँ पर इनके आने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो कारण था चंदू की दुश्मनी का। चंदू जहांगीर का वजीर था, सेनापति था, वो गुरु परिवार से दुश्मनी रखता था। उसने गुरु परिवार से दुश्मनी क्यों रखी? उसकी दुश्मनी का कारण बना उसकी लड़की का रिश्ता। पहले नाई ब्राह्मण के द्वारा रिश्ते तय होते हैं, तो चंदू ने भी अपनी लड़की के रिश्ते के वास्ते नाई ब्राह्मण को भेजा। उन्होंने हरगोबिंद साहब को पसंद किया, उन्होंने कहा हमने लड़का चुन के आए हैं। तो भाई पूछा किस परिवार के बच्चे को चुना आपने? उन्होंने बताया हमने 5 गुरु अर्जुन पुत्र हरगोबिंद साहब हैं। वो कहते कि नहीं वो रिश्ता नहीं हो पाएगा क्योंकि वो परिवार छोटा, हमारा परिवार बड़ा है। ये जब संगत को खबर हुई, संगत ने 5 गुरु अर्जुन देवी से कहा कि अपने को बड़ा, गुरु परिवार को छोटा बता रहा है, अब ये दोबारा रिश्ता आता है तो उनके रिश्ते को मानना नहीं। हुआ यही कि दोबारा फिर रिश्ता भेजा तो उन्होंने मान्य नहीं किया। इस बात का उसको बुरा लगा, उन्होंने गुरु परिवार से दुश्मनी रखी। दूसरा जहांगीर भी गुरु परिवार से दुश्मनी रखी। जहांगीर की दुश्मनी का कारण बना उसका लड़का। जहांगीर के लड़के का नाम खुसरो था और वो पंजाब की स्टेट पर मंत्री होता था। एक बार खुसरो में और जहांगीर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। जहांगीर अपनी लड़की को मारने के लिए, धमकाने के लिए पंजाब जाता है। वो डर करके 5 गुरु अर्जुन देव जी की शरण में पहुंचा। 5 गुरु अर्जुन देव जी ने उनकी मदद कर दी। इस बात को जहांगीर मन पे ले गया और उसी दुश्मनी का बदला लेते हुए 5 गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में शहीद करवाया। 5 गुरु अर्जुन देव जी की शहीद दे देने के बाद जब गुरु गद्दी पर 6 बादशाह हरगोबिंद साहब बैठे, ये तो महान पुरुष थे। इन्होंने असहाय लोगों की मदद करने के लिए बीड़ा चढ़ा। मीरी पीरी नाम से करवारी कृपाण धारण की, एक शक्ति की, एक भक्ति की सेना तैयार की। ये जहांगीर को अच्छा नहीं लगा।
जहांगीर ने सोचा कि गुरु की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, अगर ये ऐसी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, सारा राजाओं को मिला लेंगे तो हम शासन किस पर करेंगे। लेकिन ना तो वो डायरेक्ट गुरु साहब को बंदी बना सकता था, ना जुर्म कर सकता था, क्योंकि सब राजा उनके साथ में थे। ये मौका पा लिया चंदू ने जहांगीर को भर दिया। चंदू ने जहांगीर से कहा कि आप कुछ बीमार रह रहे हो, इस बीमारी नहीं है, आपको 7.5 का लगा है, आपके गिराए खराब चल रहे हैं, इसके लिए आप किसी महान पुरुष से जाप कराओ। तो उन्होंने पूछा ऐसा कौन सा पुरुष है जो हमारी तपस्या करने से हमको सही हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 गुरु जो हरगोविंद साहब जी हैं, ये बहुत महान है, अगर इनको ग्वालियर जैसे किले पर भेज के तपस्या कराओगे तो आपका 7.5 का ठीक हो जाएगा। जहांगीर ने इस बात को सुना, उसको तो बहुत अच्छा लगा, ये तो मौके की बात है, ये अच्छी बात है, अगर इन बहाने से हम ग्वालियर के किले पर गुरु साहब को भेज देंगे तो इनकी जो शक्तियाँ बढ़ रही हैं, ये राजाओं को मिलाने का प्रयत्न चल रहा है, ये टूट जाएगा। तो उन्होंने ग्वालियर के किले पर गुरु साहब को यहाँ पर भेजने का प्रयास किया, उनसे पूछा, वो जाने के लिए तैयार हुए। जब यहाँ पर आने के लिए ये तैयारी हो गई तो चंदू ने हरदास दरोगा, यहाँ का जो मेन इंचार्ज था, इसको एक पत्र भेजा कि मैं ग्वालियर के किले पर छहवासा गुरु साहब को भेज रहा हूँ, लेकिन वो किसी भी तरीके से वापिस ना लौट सके, कुछ ऐसा खिलाफ ला। उसने ये जब पढ़ा तो उसको बड़ा बुरा लगा कि गुरु तो बहुत पहुंची हुई संत, इनके बारे में इतना शब्द लिख रहा है, ये तो गलत है। और जब गुरु साहब को यहाँ पर आने की खबर हुई तो नीचे जाकर के उनको स्वागत करके लाता है यहाँ का हरदास दरोगा। उन्होंने कहा गुरु साहब यहाँ पर आपको जो लाया गया है, ये तो एक षड्यंत्र है जहांगीर, तो ये तो किला जेल है, यहाँ तो बहुत सारे राजाओं को कैद में रखा है। तो उन्होंने कहा वो राजा जो कैद में उनसे हमें मिलना। तो गुरु साहब पहले यहीं आए, तो ये राजा बंधे हुए थे, एक एक उनसे मिले। जब राजाओं को बंधे हुए देखा तो गुरु साहब को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब राजाओं ने गुरु साहब को अपने बीच में देखा उनको बड़ी खुशी होने लगी कि गुरु हमारे बीच में आ गए, अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया है। तो उनके प्रेम के आंसू तक खुलने लगे। उन्होंने कहा धीरज रखो, हम आए हैं आपकी कोई जरूर मदद करें। तो वैसे तो गुरु साहब कभी भी राजाओं को लेके जा भी सकते थे, लेकिन वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे कि सिख धर्म में शक्ति को दिखाना ये गुरु के हुक्म के मुताबिक नहीं है। ऐसा रहते हुए गुरु साहब को 2 साल 3 महीने हो गए। काफ़ी समय होने के कारण अमृतसर में माता गंगा जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा बुद्धा जी से कहा कि ग्वालियर के किले पर अब हरगोविंद साहब को जो वहाँ हैं उनको वापस लाओ। तो बाबा बुद्धा जी यहाँ आए। उस समय 5 संत गुरु साहब के साथ रहते थे। वो से गुरु कहा कि अब गुरु साहब के यहाँ से ले चलना है। उन्होंने कहा ऐसा कोई बादशाह का हुक्म नहीं है जो गुरु साहब को ले जाए। तो उन्होंने कहा कुछ प्रयास करो। जब प्रयास करने के लिए कहा तो 2 संतों ने शेर का रूप धारण किया, जहांगीर को सपने में भयभीत कर दिया। जहांगीर की पत्नी मलका नूर जहां ने शायमिया मीर से पूछा कि कारण क्या है कि बीमार रहते हैं, इनको सपने में शेर दिखते हैं, बड़ा विचलित हो रहे हैं। उन्होंने कहा आपने एक गलती की है, एक महान पुरुष को बंदी बनाया, नजर कैद किया है, उनसे जाके माफी मांगो, उनको छोड़ दो। मलका नूर जहां के कहने पर जहांगीर आए और जहांगीर ने गुरु साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये राजाओं को खबर हुई कि सुबह तो गुरु साहब चले जाएंगे। सारे राजाओं ने प्रार्थना की कि गुरु जी यदि आप अकेले जा रहे हो तो हमको कोई छुड़ाने वाला नहीं। उन्होंने कहा ना, हम एक बंदे को भी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो सबको साथ में लेके जाएंगे। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अब इसकी बेगम को फिर खबर थी कि गुरु साहब नहीं जाना चाहते, राजाओं को साथ में लेके जाना चाहते। उन्होंने कहा जितने भी राजाओं को गुरु साहब ने साथ में लेके जाना चाहे उनको सबको छोड़ो। जब छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने सोचा अगर आप बेगम के कहने पर राजाओं को छोड़ देंगे तो खुलते ही बगावत चालू कर देंगे। पीछे भी सोचा अगर अपनी बेगम की बात को नहीं मानेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने एक चाल चल दी कि जो राजा गुरु का पल्ला पकड़ के जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। तो गुरु साहब ने 52 कली के चोले का निर्माण किया। उस चोले को पहना, एक एक राजाओं को एक एक चीज पकड़ा करके सारे 52 कली का चोला बनाया। 52 कली कटी हुई थी, उसको पहना, एक एक राजा को एक एक थल्ला पकड़ा करके सारे राजाओं को कैसे छुड़ाया। उनकी यादगार में दाता वली के नाम से गुरुद्वारे साहब है। तो जहाँ गुरुद्वारे साहब वहाँ पर गुरु साहब ने तपस्या की है 2 साल 3 महीने। जहाँ गुरु साहब रहे हैं, जहाँ गुरु के चरण पढ़ते रहे, ये वो पवित्र पावन जगह है जहाँ पर अभी आप लोग उससे शादी करने के 2 कारण। एक कारण तो ये था कि 8 रानियाँ राजा की थी लेकिन पुत्र किसी के नहीं था, संतान किसी के नहीं था। एक बार राजा शिकार खेलने जा रहे थे, उन्होंने जंगल में एक सीन देखा कि एक बहादुर खूबसूरत लड़की भैंस से लड़ रही है और इतनी ताकतवर है कि वो लड़की लड़ते हुए और भैंसे को हरा देती है। तो राजा बड़ी खुश हुए, उस लड़की से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया नन्नी। नन्नी वो कहते हैं कि इसको छोटे को। राजा मानसिंह की बहादुरता को देखते हुए कहा कि आपका नाम जो नन्नी है वो आपके लायक तो नहीं है, आप तो बड़ी सुंदर हैं और बड़ी ताकतवर हैं, हम आज से आपका नाम बदलते हैं, हम आज से आपका नाम मृगनयनी रखते हैं।
ब्रेक मैन होता है हिरण जैसी बड़ी बड़ी आंखें। और उन्होंने कहा हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जब शादी करने के लिए लड़की से कहा तो लड़की ने क्या कहा कि मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे 3 शर्तें मांगती हूँ। अगर आप मेरी 3 शर्तें मान लेंगे तो मैं आपके साथ शादी कर लूँगी। राजा ने कहा हम तो आपकी हर शर्त को देने के लिए तैयार हैं, बताओ क्या मांगना है। तो लड़की ने पहली शर्त ये मांगी कि आपकी रानियाँ जो पर्दा डालती हैं हम पर्दा नहीं रखेंगे। राजपूत राजाओं की रानियाँ पर्दा रखती थी, तो उन्होंने हम पर्दा में नहीं रहेंगे। दूसरी शर्त ये मांगी आप युद्ध में लड़ने जाओगे, जंगल में शिकार खेलने जाओगे तो मैं साथ में रहूँगी, हमेशा आपके आजू बाजू रहने का अधिकार चाहती हूँ। तीसरी शर्त ये मांगी कि मैं आपके ग्वालियर के पानी को नहीं पीऊँगी, मेरे लिए मेरे गांव का पानी आना चाहिए, मेरे पिंड का पानी आना चाहिए, क्योंकि वही पानी मेरी ताकत और सुंदरता का कारण है। ये शर्त बहुत कठिन थी। गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, किले की 3.5 फुट की ऊंचाई थी, तो पानी को वहाँ से ऊपर तो ला नहीं सकते थे, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था पूरा करना। इसलिए इस किले के ऊपर महल बनवाया था। उस महल को किले के बाहर जमीन लेवल से नीचे अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डालते हुए उस महल के अंदर तक पानी लाया गया। तो वो महल शहर में अलग और ये 8 रानियों को रहने के लिए अलग। अब इस महल के अंदर जो कमरे हैं, कमरों के अंदर रखा नहीं है, डिजाइन है, डिजाइन के साथ कहानी है, डीजे कैसे होता था, कूलर कैसे चलता था, लाइट कैसे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। लेकिन कहो कि आप उसमें रखा हुआ नहीं मिला तो रखा हुआ कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज टिकट नहीं है, रखा हो तो ठीक है, नहीं रखा हो तो ठीक है, ये घूम करके ग्राउंड लगा के आओ। भाई टिकट लेके जाते हैं तो लगता है जब कुछ है नहीं है तो काहे के लिए जा रहे हैं। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ
ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ये हुई तो बात ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ नॉर्मल कर लो।